Today we are going to start our chapter 1, number system. Natural numbers. The numbers from 1 to infinity are called natural numbers. That is 1, 2, 3 till infinity. All the numbers starting from 1 till infinity are natural numbers. 1 से infinity तक सभी numbers natural numbers होते हैं. Whole numbers, the natural numbers along with 0 are called whole numbers. That is 0, 1, 2, 3 till infinity. Now सभी natural numbers और उनके साथ में 0 भी इंक्लूड हो जाता है तो वो नंबर्स होते हैं हमारे होल नंबर्स. दैट मीन्स होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स तो आते ही हैं, उसके साथ साथ एक 0 और ऐड हो जाता है. तो दैट मीन्स ऑल दीज नंबर्स आर होल नंबर्स. Then integers. Integers are the combination of positive and negative numbers. Integers सभी positive और negative numbers का combination है. जितने भी negative और positive numbers हैं वो सभी integers होते हैं. 0 ना ही तो positive होता है ना ही negative होता है. Example of integers is -6, -5, -11, -651. These are negative integers and 0 is neither negative nor positive. 725, 9265 etc. These are positive integers. Now rational numbers. The numbers in the form of p upon q where q is not equals to 0 are called rational numbers. वो numbers जो p upon q की form में होते हैं, that means कि जिनमें numerator भी होता है और denominator भी. But denominator should not be equal to 0. Denominator जो है वो 0 के equal नहीं होना चाहिए. All those numbers which can be represented in the form of p upon q are rational numbers. For example, 5 upon 8, -3 upon 14, -2, 7 upon -15, -2, -3. In this one, we have not written in denominator. But we can write it over here 1. So this is also in the p upon q form where q is not equals to 0. So this is also a positive or negative rational number. This is a negative rational number. If we write at the denominator -1, then it will become a positive rational number. Now irrational numbers. The numbers which cannot be represented in the form of p upon q are irrational numbers. वो numbers जिनको हम p upon q की form में represent नहीं कर सकते हैं वो irrational numbers होते हैं. For example, √2, 3 की power 1 upon 3, in roots of 7, 9, pi etc. वो numbers जिनका perfect वो नहीं होता है, जिस भी power root के अंदर वो है वो परफेक्टली अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो वो नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं. सपोज यहाँ √2 की जगह √4 होता है तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं √4 को तो विल गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट विल बी 2 बिकॉज 2 into 2 विल बी 4. तो 4 जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो दैट विल बिकम अ रेशनल नंबर. बट हियर √2 इज नॉट अ rational number, it is a irrational number. Same way these numbers are also irrational numbers. Now real numbers. What are real numbers? जितने भी rational और irrational numbers हैं वो सभी मिलाकर real numbers बनाते हैं. Rational and irrational numbers together are called real numbers and real numbers are denoted by capital R. Now decimal expansion of real numbers. Real numbers का decimal expansion. Real numbers are what? Rational and irrational numbers. Now rational numbers are terminating decimal expansion and non-terminating recurring repeating decimal expansion. In rational numbers there are two types of decimal expansion. In case 1, remainder becomes 0 after some steps. That means terminating means what? Terminating means after some steps something stops. That means रुक जाना. जब हमें किसी भी दो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद में ये कुछ डेसिमल्स के बाद में एंड हो जाता है. दैट मीन्स इट स्टॉप्स. तो दैट इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नाउ non-terminating recurring repeating decimal expansion. What is recurring or repeating? That means after some steps
the digit starts repeating. Now 1/3 is an example of rational number that is non-terminating recurring. When you divide this, you get 0.333333 and so on. This 3 we get unlimited times. So this 3 is repeating now. So we can write this in this form 0.3 and on 3 we can write bar. जो भी डिजिट रिपीट हो रही होती है उसके ऊपर हम ये बार का साइन लगा देते हैं. दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. दैट मीन्स कि रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो and digits start repeating. Same, one more example of this is 1/7, that is 0.142857. When you divide this, you get this number, and after this you again get the same value, and then again you get the same value. So this, all these 6 digits starts repeating after 1 by 1. So that means this is written under the bar. So in rational number, 2 types of decimal expansion: terminating and non-terminating recurring repeating decimal expansion and terminating decimal expansion. Now decimal expansion of irrational numbers. When non-terminating, non-recurring, non-repeating decimal expansion, irrational numbers में जो terminate नहीं होती है, that means कि एंड नहीं होती है, डेसिमल्स के बाद में डिजिट्स एंड नहीं होती हैं और उसके साथ साथ में रिपीट भी नहीं होती हैं, दैट मीन्स चेंज होकर डिजिट्स आती रहती हैं, तो वो नंबर्स इररेशनल नंबर्स होते हैं. और इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन इररेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन होता है. सेम √3 को भी जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसकी भी वैल्यूज इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग वाली मिलती हैं. One more example of this irrational number is 1.20, 200, 200, and it can be written in any more ways. So here you are getting 20, that means 10 you are getting here, you are getting here 20, you are getting here 30. Digits are not repeating, they are changing. Here we are having 10, here we are having 20, and here we are having 30. So these digits are not repeating, they are changing after 1 by 1. After decimals we are not getting same. So irrational numbers में non terminating, non recurring, non repeating decimal expansion होता है और rational numbers में terminating decimal expansion और non terminating, recurring, repeating decimal expansion होता है. How to check without actual division whether a rational number is a terminating decimal expansion or non terminating decimal expansion. बिना डिवाइड किए कैसे पता लगाएं कि जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग 1 है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग 1 डेसिमल एक्सपेंशन है. तो उसका तरीका होता है, जो भी रेशनल नंबर गिवन है उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो. प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम, जैसे 40 है, यहाँ पर 7/40 में 40 है, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 × 2 × 5 × 5. अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 फैक्टर्स हैं, then that decimal expansion will be terminating decimal expansion. Here what we are getting, 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2. So this will be a terminating decimal expansion. One more example, 3/30. यहाँ जब 30 का डेसिमल प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें मिला 3 × 2 × 5. 3 से 3 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर का 3 और न्यूमरेटर का 3 कैंसिल हुआ. अब हमें मिला यहाँ पर 2 into 5, that means 2 की पावर 1 into 5 की पावर 1. So it will also be a terminating decimal expansion because we are getting factor 2 and 5 here. Here 6/25. When we will factorize 25, we will get 5 into 5. So 6, यहाँ पर हमें मिल रहा है 2 की पावर 0, that means यहाँ 2 as a factor नहीं है, but 5 की पावर 2 है. इस केस में भी जब अगर दूसरा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 अगर हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा. अगर उसके अलावा कोई और फैक्टर आ जाता है
तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग 1 बन जाता है। यहाँ पर 2 की पावर 0 हो गया क्योंकि 2 है ही नहीं, उसके अलावा 5 की पावर 2 है, तो इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग ही होगा। इसी तरह से इस एग्जांपल में यहाँ पर 2 की पावर 2 है पर 5 नहीं है, then also it will be terminating decimal expansion. Then 5 upon 21, when you factorize or prime factorization of this will be 3 into 7. Here we are getting factors other than 2 and 5, so this will be a non-terminating decimal expansion. So to find out that without actual division whether it is a terminating or non-terminating, we'll factorize the denominator and we will get, if we will get 2 and 5 as a factor, then that will be terminating, and if we get other than 2 or 5, then that will be non-terminating decimal expansion. Now to find rational numbers between 3 upon 5 and 4 upon 6, कोई भी दो रेशनल नंबर्स गिवन है, उनके बीच में अगर रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो उसके दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा कि जो भी रेशनल नंबर्स गिवन है उनके डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो नंबर मिलता है दैट इज 30। हियर वी आर हैविंग 5 and 6 as our denominators, so LCM of 5 and 6 is 30. So first number is 3 upon 5, तो इसके डिनोमिनेटर को जो भी हमारा एलसीएम मिला है वो हमें चेंज करना है। तो 5 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है? 6 टाइम्स। तो विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ of the rational number with the 6. So 3 into 6 will be 18 and 5 into 6 will be 30. Same यहाँ पर जो सेकंड रेशनल नंबर गिवन है उसका भी हमें डिनोमिनेटर 30 बनाना होगा। तो यहाँ 6 है, 6 की टेबल में 35 टाइम्स आता है, तो 4 into 5 and 6 into 5. तो 4 multiplied by 5 will be 20 and 6 multiplied by 5 will be 30. So we get denominators same. So in between 18 upon 30 and 20 upon 30 we'll be having only a single number, that is 19 upon 30. If we want one number then that's okay. If we need more than one numbers then what should we do? So if we multiply this 18 upon 30 by 2 then that will be 36 upon 60, and the same way if we are multiplying this with 2 then we should multiply this with also 2. So 20 upon 30 if we will multiply it by 2 then we will get 40 upon 60. So what we get here? 36 upon 60, and here we get 40 upon 60. So how many numbers are there in between? 3 numbers, 37 upon 60, 38 upon 60 and 39 upon 60. Same, if we need more numbers then we will multiply it with the greater digits and we will get the difference of the numbers more. Second method, mean method. Formula for that is half a plus b. Our question was 3 upon 5 और 4 upon 6 के बीच में रेशनल नंबर्स निकालने थे, तो इन दोनों का सम करते हैं, जो भी सम आता है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सम करेंगे तो इसका सम हमें मिलेगा 38 अपॉन 30 और हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रेशनल नंबर मिल जाएगा 38 अपॉन 60, जो कि इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर है। अब हमें अगर ज्यादा और रेशनल नंबर निकालना है तो हम इस जो हमें आंसर मिला है उस रेशनल नंबर को और इन दोनों में से कोई भी नंबर यूज करके और यही फॉर्मूला अप्लाई करके दूसरा रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। तो हमने 3 अपॉन 5 और ये रेशनल नंबर यूज किया तो हमें आंसर मिला 74 अपॉन 120। अब ये रेशनल नंबर और सेकंड वाला रेशनल नंबर यूज करके हम दूसरा निकाल सकते हैं। फिर ये जो सेकंड वाले में इनको सॉल्व करने पर जो रेशनल नंबर मिला था इसको और जो हमारा फर्स्ट वाला रेशनल नंबर था इसको यूज करके और रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे रेशनल नंबर्स निकाले जा सकते हैं, फाइंड किए जा सकते हैं। नाउ फाइंडिंग इररेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। कोई भी डिजिट्स गिवन है, दो रेशनल नंबर्स गिवन है, उनके बीच में इररेशनल नंबर्स निकालने का मेथड है 1/7। पहले इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन जब हमने फाइंड किया तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 0.142857 और फिर ये डिजिट रिपीट होने लग जाएगी, इसलिए मैंने इस पे बार लगा दिया है। 2/7
इज इक्वल्स टू 0.285714। फिर ये डिजिट रिपीट होने लग जाएगी, इसलिए हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। अब इन दोनों के बीच में बहुत सारे रेशनल और बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब इन दोनों के बीच के कोई भी नंबर्स को हम एज ए इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। 0.1428575757 कोई भी नंबर्स इन इस डिजिट और इस डिजिट के बीच के कोई भी नंबर्स 0.150 1500 15000 एंड सो ऑन। दैट मीन्स कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले नंबर्स ही होने चाहिए। एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन P अपॉन Q फॉर्म, कोई भी एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर गिवन है, उसे हमें P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0.3 बार है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.3333, क्योंकि 3 के ऊपर बार है, दैट मीन्स ये 3 रिपीट हो रहा है और इसे हम x अज्यूम कर लेते हैं। इसे फर्स्ट इक्वेशन देंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि बार कितने डिजिट्स के ऊपर है वहां उसके अकॉर्डिंग हम 1 के आगे जीरोस पुट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 1 डिजिट के ऊपर बार था इसलिए हमने 10 लिया है। अब इस इक्वेशन को दोनों साइड्स में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3.3333। एक डेसिमल के बाद की एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 1 0 है इसलिए। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से। तो 10x माइनस एक्स दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड वाला सब्ट्रैक्ट होगा और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड वाला सब्ट्रैक्ट होगा। 10x में से x को सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया 9x और ये 3.3333 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.000, क्योंकि डेसिमल के बाद में सेम नंबर्स हैं तो यहाँ और डेसिमल से पहले 3 और माइनस 0 करेंगे तो इट विल बी 3। तो 9x विल बी इक्वल टू व्हाट 3, तो x विल बी इक्वल टू ये 9 इधर शिफ्ट होगा तो ये 3/9 बन जाएगा और ये दोनों ही डिजिट 3 से कैंसिल हो सकती हैं तो ये 1 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो इट विल बिकम 1/3। सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस एज 1/3 दैट इज P अपॉन Q फॉर्म। वन मोर इज 1.27 बार, यहाँ पर 27 के ऊपर बार है तो ये 27 रिपीट हो रहा है, इसे हम x अज्यूम कर लेंगे और इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देंगे। अभी जैसे मैंने बताया था कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार होता है उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हम 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो इसलिए 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में ये हमें मिल जाएगा 100x और ये हो जाएगा 127.272727। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 100x में से x माइनस करेंगे तो 99x मिलेगा और 127.272727 में से 1.272727 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 126.00000। नाउ x विल बी इक्वल टू व्हाट, ये 99 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 126 के बाद ये सारे 000 हैं तो हम इसे 126 लिख सकते हैं। तो x विल बी इक्वल टू व्हाट 126/99। अब ये 3 से कैंसिल हो सकता है, ये 3 से कैंसिल होकर 42 बनेगा और ये 3 से कैंसिल होकर 33 बनेगा। ये आगे भी कैंसिल हो सकते हैं और कैंसिल होके फिर ये जो नंबर होगा ये और कैंसिल हो जाएगा। 42/33 है तो ये हो जाएगा 14/11। तो हम इसको 1.27 बार को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 14/11 से।